Welcome, my dear students. You are studying with ByPS Academic Solutions. Today, we will solve 4 questions of CBSE board exam based on AP. Question number 5. If a chain is the sum of first n terms of an AP given by Sn is equal to 3n square minus 4n, then find the nth term. ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है. सॉल्यूशन गिवन Sn is equal to 3n square minus 4n 1. On putting n is equal to n minus 1, Sn minus 1 is equal to 3n minus 1 whole square minus 4n minus 1 is equal to 3n minus 1 के होल स्क्वायर को खोल दिया तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 4n प्लस 4 इक्वल टू अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस 4n प्लस 4 Sn माइनस 1 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 10n 6n और 4n को ऐड कर दिया प्लस 7 4 और 3 को ऐड कर दिया. दिस इज इक्वेशन 2. वी नो दैट an is equal to Sn minus Sn minus 1. So an is equal to 3n square minus 4n minus in bracket 3n square minus 10n plus 7 is equal to 3n square minus 4n minus 3n square plus 10n minus 7. 3n square से 3n square कैंसिल हो गया तो an is equal to 6n minus 7. So the nth term of the AP is 6n minus 7. Now we will do the next question. Question number 6. Find the common difference of an AP whose first term is 8, last term is 65, and the sum of all its terms is 730. ये क्वेश्चन CBSE 2023 में आया है. सॉल्यूशन गिवन फर्स्ट टर्म a is equal to 8, लास्ट टर्म is equal to जनरल टर्म an is equal to 65 और सम ऑफ all terms Sn is equal to 730. We know that Sn is equal to n by 2 a plus n. So put all values. So 730 is equal to n by 2 8 plus 65. First term, last term. So 8 plus 65. 730 multiplied by 2. इस 2 को हम लेफ्ट में ले गए इक्वल टू 73n 65 और 8 को ऐड कर दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 730 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 73 इक्वल टू 730 को 73 से कट किया तो इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 20. यूजिंग फार्मूला an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. So put all values. 65 is equal to 8 plus 20 minus 1 multiplied by d. So 65 is equal to 8 plus 19d. 20 में से 1 को माइनस कर दिया. 65 माइनस 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए इक्वल टू 19d. 65 में से 8 को माइनस किया 57 इक्वल टू 19d. दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 57 अपॉन 19 इज इक्वल टू 3. सो द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Find the sum of integers between 100 and 200 which are. First question, divisible by 9. Second question, not divisible by 9. ये क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन
The integers between 100 and 200 divisible by 9 are 108, 117, 126, dot 198. तो ये इंटीजर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रफ वर्क का भी मैं आपको शो करता हूँ। सबसे लोएस्ट नंबर ले लिया 100, 9 से उसको डिवाइड किया तो 9 वंस 9 1, फिर 0 लिया तो 9 2 18, तो 9 वंस 9 तक जाता है इसमें, लेकिन हमको उससे एक ज़्यादा बार डिवाइड करना है, तो इसलिए 9 2 18। अब हमने ये इसको माइनस किया तो -8 इसका रिमाइंडर आया। तो 100 + 8 = 108 इज द फर्स्ट नंबर greater than 3-digit number 100 and divisible by 9. So next number 108 + 9 = 117. Next number 117 + 9 = 126. और greatest number less than 200 divisible by 9. तो 200 को हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 2 18, 2 फिर 0 लिया, फिर 9 से 9 2 18। इसमें हमको जितने बार उसमें जा रहा है उतने ही बार देना है, इसमें ज़्यादा बार नहीं देना है जब हम ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 2, तो अब 200 में से हमने 2 रिमाइंडर माइनस किया तो आया आंसर 198। तो ये हमारा होगा ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 200 डिविजिबल बाई 9। तो ये नंबर्स जो है रफ वर्क मैंने आपको दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज इंटीजर्स आर इन AP। हियर A = 108, D = 9 and last term = 198. First we will find n = number of terms. So last term = general term an = a plus n minus 1 multiplied by d. Now put all values. So an 198 = 108 first term plus n minus 1 multiplied by d. d की वैल्यू 9। 198 minus 108, 108 को हम लेफ्ट साइड में ले गए = n minus 1 multiplied by 9। सो 90, इसमें से इसको माइनस किया 90 बचा, 90 = n minus 1 multiplied by 9। So 90 = n minus 1 multiplied by 9. So 90/9 = n minus 1। 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। दिस इम्प्लाइज n minus 1 = 10। 9 से 90 को कट कर दिया। दिस इम्प्लाइज n = 10 + 1। 1 को हम राइट साइड में ले गए = 11। वी नो दैट Sn = n/2 a plus l। सो S11, क्योंकि 11 n की वैल्यू हमारी 11 निकली है, तो S11 = 11/2 108 + 198। फर्स्ट टर्म की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू। So S11 = 11/2 multiplied by 306। इन दोनों को ऐड कर दिया = 1683। तो ये हमारी आ गया सम। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम 100 और 200 के बीच में जो नंबर्स हैं उन सब का सम निकालेंगे और उसमें से फिर इसको हम माइनस कर देंगे। तो नंबर्स बिटवीन 100 and 200 आर 101, 102, 103, dot 199। Total number of terms n = 99. These numbers are in AP. Here A = 101, D = 1. तो S99 = 99/2
2 मल्टीप्लाइड बाई 101 प्लस 99 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। सब वैल्यू रख दी, ये ए की वैल्यू, ये एन की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। बिकॉज एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। So S99 इज इक्वल टू 99/2, इनका मल्टीप्लाई किया 202 प्लस ये 99 में से 1 को माइनस किया तो 98 इक्वल टू 99/2, इनको ऐड किया तो 300 इज इक्वल टू, अब 2 से इसको कट किया और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 14,850। So the sum of integers between 100 and 200 which are not divisible by 9 is 14,850। तो टोटल नंबर्स का सम निकला है वो -1683। ये सम था हमारा नंबर्स डिविजिबल बाई 9 बिटवीन 100 एंड 200 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 13,167। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इफ Sn is the sum of the first 10 terms of an AP given by Sn is equal to 2n square plus 5n, then find its nth term। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है। सॉल्यूशन, given Sn is equal to 2n square plus 5n, on putting n is equal to n minus 1, we get Sn minus 1 equal to 2n minus 1 whole square plus 5n minus 1 इक्वल टू 2, इसको होल स्क्वायर को खोल दिया तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 1। सो Sn माइनस 1 इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पर 5n से 4n माइनस कर दिया तो n बचा, यहाँ -5 से 2 माइनस कर दिया तो बचा -3। सो An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। सो An इज इक्वल टू 4n प्लस 3। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5n में से n माइनस किया तो 4n और यहाँ से बचा +3। सो nth टर्म इज इक्वल टू 4n प्लस 3। यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और फर्दर आप सजेशन दे सकते हैं कि किस चैप्टर या किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएं, और सिस्टम या मेथड को इम्प्रूव करने के लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।